heart gon' bounce on you, soulmate. She's so perfect, blah blah blah. Oh, how I wish you'll wake up one day. Come to me, confess your love, let me stay. 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 Let me stay. Confess your love, let me stay. Confess your love, let me stay. Confess your love, let me stay. That when I talk to you, oh Cupid walks right through and shoots an arrow through my heart. And I sound like a loon, but don't you feel to confess I love you from the start. Come to me, confess your love, that let me stay. Confess your love, that me stay. Confess your love, that let me stay. Confess your love, that me stay. Let me stay. Confess your love, that me stay. Confess your love, that let me stay. Confess your love, that me stay. That when I talk to you, oh Cupid walks right through and shoots an arrow through my heart. And I sound like a loon, but don't you feel to confess I love you from the start. Come to me, confess your love, that let me stay. Confess your love, that me stay. Confess your love, that let me stay. Confess your love, that me stay. Let me stay. Confess your love, that me stay. Confess your love, that let me stay. Confess your love, that me stay. That when I talk to you. Báilalo, gózalo, como lo canto y lo siento yo. Báilalo, gózalo, como lo canto y lo siento yo. Báilalo, gózalo, como lo canto y lo siento yo. Báilalo, gózalo, como lo canto y lo siento yo. Báilalo, gózalo, como lo canto y lo siento yo. Báilalo, gózalo, como lo canto y lo siento yo. Báilalo, gózalo, como lo canto y lo siento yo. Báilalo, gózalo, como lo canto y lo siento yo. Ô novinha taradinha, danadinha, gostosinha, usa já fala, 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 fala. Ô novinha taradinha, danadinha, gostosinha, usa já.
pressão. Mina linda, perigosa, rouba meu coração. Vai quicando, vai jogando, não perde a razão. No batidão, só pura tentação. Ela desce, ela sobe no baile, pressão. Mina linda, perigosa, rouba meu coração. Ela desce, ela sobe no baile, pressão. Mina linda, perigosa, rouba meu coração. Ela desce, ela sobe no baile, é pressão. Mina linda, perigosa, rouba meu coração. Vai quicando, vai jogando, não bate a razão. No batidão, só pura tentação. Desce, ela sobe no baile, pressão. Mina linda, perigosa, rouba meu coração. Desce, ela sobe no baile, pressão. Mina linda, perigosa, rouba meu coração. Desce, ela sobe no baile, pressão. Mina linda, perigosa, rouba meu coração. Ela desce, ela sobe no baile, é pressão. Mina linda, perigosa, rouba meu coração. Vai quicando, vai jogando, não bate a razão. No batidão, só pura tentação. Desce, ela sobe no baile, pressão. Mina linda, perigosa, rouba meu coração. Desce, ela sobe no baile, pressão. Mina linda, perigosa, rouba meu coração. Desce, ela sobe no baile, pressão. Mina linda, perigosa, rouba meu coração. Ela desce, ela sobe no baile, é pressão. Mina linda, perigosa, rouba meu coração. Vai quicando, vai jogando, não bate a razão. No batidão, só pura tentação. Desce, ela sobe no baile, pressão. Mina linda, perigosa, rouba meu coração. Desce, ela sobe no baile, pressão. Mina linda, perigosa, rouba meu coração. Desce, ela sobe no baile, pressão. Mina linda, perigosa, rouba meu coração. Ela desce, ela sobe no baile, é pressão. Mina linda, perigosa, rouba meu coração. Vai quicando, vai jogando, não bate a razão. No batidão, só pura tentação. Desce, ela sobe no baile, pressão. Mina linda, perigosa, rouba meu coração. Desce, ela sobe no baile, pressão. Have you ever achieved something, but deep down felt like you didn't really deserve it? Like, any moment now someone will find out that you're not as good as they think you are. If that sounds familiar, you're definitely not alone. In fact, some of the most successful and smartest people in the world experience this exact feeling. Today, we're talking about imposter syndrome, why so many high achievers feel not good enough, how it affects your life, and most importantly, how to break free from it. Let's begin. What is imposter syndrome? Imposter syndrome is a psychological pattern where you believe you're not as capable, smart, or talented as others think you are, even when there is clear evidence that you are. It tricks your mind into thinking that your achievements don't really belong to you. People with imposter syndrome often say things like, "I only got lucky. Anyone could have done what I did. If people look closely, they'll realize I'm not that good." What makes it even more confusing is this. It has nothing to do with your actual abilities, but everything to do with how you perceive yourself. That's why someone extremely talented can still feel like a fraud. Why do so many people experience it? So, why does imposter syndrome happen? 1. Constant comparison. We live in a world where social media shows us only the perfect moments from everyone's life. You start comparing your behind the scenes to someone else's highlight reel, and suddenly you feel less. 2. Growing up with criticism. If you grew up hearing things like, "You could have done better," you might believe your efforts are never enough. 3. Fast success. When you achieve something quickly, your brain sometimes can't process it. You feel like success arrived before you were ready.
4. Highly competitive environments. Schools, workplaces, teams. When expectations are extremely high, even capable people doubt themselves. And, believe it or not, many famous people, including Emma Watson, Tom Hanks, and even Albert Einstein, publicly said they felt like imposters. Signs you may have imposter syndrome. Here are the most common signs. 1. Downplaying your achievements. You accomplish something big, and your brain says, it's nothing special. 2. Fear of being found out. You constantly worry that people will discover your real level. 3. Perfectionism. You believe anything less than 100% equals failure. 4. Avoiding new opportunities. You turn down promotions or challenges because you're scared you won't be good enough. 5. Constant anxiety and pressure. Even when things are going well, you feel tense and insecure. If you relate to 2 or more of these, there's a good chance imposter syndrome is playing a role in your life. The 5 types of imposter syndrome. Researchers say imposter syndrome shows up in different forms. Here are the 5 most common types. 1. The perfectionist. Success must be flawless. Anything less feels like failure. 2. The expert. Thinks they must know everything before taking action. If not, they feel unqualified. 3. The natural genius. If something doesn't come easily, they assume they're not smart enough. 4. The soloist. Hates asking for help because they believe it makes them look weak. 5. The superhero. Feels the need to work harder than everyone else to prove they're capable. You might see yourself in one, or a mix of several. How imposter syndrome affects your life. Imposter syndrome might seem like just a thought, but over time, it can completely shape your life. It can stop you from taking important opportunities, destroy your confidence, create chronic stress and anxiety, make you second-guess every decision, prevent you from enjoying your achievements. The sad part? You might live your entire life thinking you're not good enough, when in reality, you were capable all along. How to overcome imposter syndrome. Now let's talk about how you can break free from it, starting today. 1. Separate feelings from facts. Feelings say, you don't deserve success. Facts say, you earned it through effort, skills, and growth. Ask yourself, where is the real evidence? 2. Start recording your achievements. Every week, write down a few things you accomplished. When you look back, you'll realize you've achieved far more than you remember. 3. Reduce comparisons. You're comparing your full story to someone else's best moments. That's not fair. 4. Accept that you're not meant to be perfect. Mistakes don't make you a fraud. They make you human, and they help you grow. 5. Learn to ask for help. The strongest people in the world have mentors, coaches, and support systems. Success is a team effort, not a solo mission. 6. Celebrate your wins, even the small ones. Say to yourself, I did a good job today. This simple habit builds your confidence over time. Imposter syndrome doesn't mean you're weak. It means you're ambitious, you care, and you set high standards for yourself. But remember, you do deserve where you are. You did earn your success, and you're far more capable than that little voice in your head wants you to believe. The next time that voice tries to tell you you're not enough, remind yourself, I'm not an imposter. I'm growing, I'm improving, and I deserve to be here. If you enjoyed this video,
Don't forget to like and subscribe and share it with someone who needs to hear this message today. राजस्थान को अक्सर बस रेगिस्तान और बड़े बड़े किलों वाला समझा जाता है, पर इसका एक और पहलू भी है, हरा भरा, पानी से भरा हुआ। फेमस शहरों से परे दक्षिणी राजस्थान है, जहां अरावली पहाड़ियां उन नदियों को अपनी गोद में लेती है और कुदरती नज़ारे बनाती है। बांसवाड़ा में, जिसे 100 टापुओं का शहर कहते हैं, माही डैम के बैकवाटर ने ज़मीन को टापुओं के पैचवर्क में बदल दिया है। यहाँ हरियाली ही हरियाली है और हवा में गीली मिट्टी की मीठी खुशबू घुली हुई है। मेरी यात्रा मुझे एक ऐसी जगह ले जाती है जिसके बारे में लोकल लोग फुसफुसाते हैं, एक सीक्रेट टापू वाला गांव, चाचा कोटा। यह गांव दुनिया से छिपा हुआ नेचर के साथ हार्मनी और सिंपल खुशियों की कहानी सुनाता है। ये सिर्फ एक डेस्टिनेशन के बारे में नहीं है, बल्कि रास्ते में होने वाली डिस्कवरीज के बारे में भी है। चाचा कोटा एक फूले हुए सपने जैसा लगता है, मॉडर्न जिंदगी की भाग दौड़ से बिल्कुल अलग दुनिया। आज मैं आपको इनवाइट करता हूं कि आप मेरे साथ इस छिपे हुए पैराडाइज को अनकवर करें। चलिए अपनी यात्रा राजस्थान के दिल में शुरू करते हैं। चाचा कोटा पहुंचना एक एडवेंचर है। बांसवाड़ा की मेन सड़कों को पीछे छोड़कर आप हरे भरे खेतों और शांत हवेलियों से गुजरते हैं। हवा ठंडी होती जाती है, दुनिया शांत होती जाती है, जब तक कि अचानक नीले पानी का एक विशाल एक्सपेंस दिखाई देता है, माही डैम के बैक वाटर। पानी से छोटे छोटे हरे टापू ऊपर उठते हैं, एक सांस रोक देने वाला अनएक्सपेक्टेड लैंडस्केप बनाते हुए। गांव तक पहुंचने के लिए आप एक संकरे कॉजवे को पार करते हैं, जो ऐसा लगता है जैसे आप शीशे पर ग्लाइड कर रहे हों। दोनों तरफ मछुआरे नावों में तैरते हैं और आसमान शांत पानी में पूरी तरह से रिफ्लेक्ट होता है। यह ब्रिज सिर्फ एक रास्ता नहीं है, ये दूसरी दुनिया का एक गेटवे है। चाचा कोटा ऊंची नीची पहाड़ियों के बीच बसा है, चारों तरफ शिमरिंग पानी से घिरा हुआ। घर सिंपल हैं, लैंडस्केप में खुल मिल जाते हैं और सिर्फ पानी के लहरों और दूर से आती हंसी की आवाजें सुनाई देती हैं। यहाँ कोई भीड़ नहीं है, कोई भाग दौड़ नहीं, बस शांति है। यहाँ राजस्थान एक शांत जलीय सुंदरता दिखाता है जो शायद ही कभी देखी जाती है। चाचा कोटा सचमुच एक छिपा हुआ पैराडाइज है। शांति के इस टापू में आपका स्वागत है। चाचा कोटा में कदम रखते ही मुझे एक गहरी शांति महसूस हुई। खामोशी में कीड़ों की भिनभिनाहट और पक्षियों की दूर से आती आवाजें जिंदा थीं। मिट्टी और पत्थरों के घरों के बीच रास्ते घुमावदार थे। हर घर में एक छोटा आंगन जहां रोजमर्रा की जिंदगी चलती थी। मक्के के हरे भरे खेत नीले पानी से सटे थे, एक खूबसूरत मोज़ेक बनाते हुए। गांव के लोग अपने काम में लगे थे, महिलाएं मसाले पीस रही थीं, बच्चे खेल रहे थे, बड़े कहानियां सुना रहे थे। दरवाजे खुले थे, मुस्कुराहटें आसान थीं और कम्युनिटी हर जगह थी। शहर की जिंदगी का स्ट्रेस पिघल गया जैसे जैसे मैं गांव में और अंदर गया। चाचा कोटा सिर्फ एक जगह नहीं है, ये सिंप्लिसिटी और शांति के घर लौटने का एक एहसास है। यहाँ जिंदगी की ज़रूरी चीज़ें, ताज़ी हवा, गर्म मुस्कुराहटें और नेचुरल ब्यूटी आपको याद दिलाती हैं कि सच में क्या ज़रूरी है। ये टापू आपको धीमा होने और बस होने के लिए एक जेंटल रिमाइंडर है। चाचा कोटा का दिल उसके लोग हैं, ट्राइबल कम्युनिटीज जो नेचर के साथ हार्मनी में रहती हैं। मैं एक बूढ़े मछुआरे से मिला, उसके हाथ सालों से जाल ठीक करने में माहिर थे, जिसने नदी और उससे मिलने वाली जिंदगी के लिए आभार व्यक्त किया। महिलाएं मजबूत और ग्रेसफुल, हंसी और लचीलेपन से घरों और खेतों को संभालती है। उनकी रंगीन पोशाकें गांव को चमकाती हैं। यहाँ हॉस्पिटैलिटी जेन्युइन है, एक गिलास पानी, एक स्वागत भरी मुस्कान, ऐसी काइंडनेस जिसे शब्दों की जरूरत नहीं। बच्चे आज़ादी से खेलते हैं, उनकी हंसी पानी के पार गूंजती है, नेचर के खेल के मैदान में खुशी ढूंढते हुए। उनकी मासूमियत और जिज्ञासा एक सिंपलर, हैप्पियर बचपन की याद दिलाती है। यहाँ जिंदगी को दौलत से नहीं बल्कि कनेक्शन, संतोष और शांति से मापा जाता है। कम्युनिटी की ताकत एकजुटता और शेयर्ड ट्रेडिशंस में है। चाचा कोटा में खुशी रोजमर्रा की चीजों में मिलती है, हम सभी के लिए एक सबक। ये एक ऐसी जगह है जहां जिंदगी की सबसे अच्छी चीजें सचमुच फ्री हैं। चाचा कोटा की संस्कृति
प्राचीन परंपराओं और नेचर के प्रति गहरे सम्मान का एक जीवित टैपेस्ट्री है। जीवन सीजन्स की रिद्म का पालन करता है, जो पीढ़ियों से चली आ रही ज्ञान से निर्देशित होता है। टापू के लोग खुद को जमीन का केयर टेकर मानते हैं, सस्टेनेबल फार्मिंग करते हैं और नेचुरल मटेरियल से घर बनाते हैं। लोकल प्लांट्स और मछली पकड़ने के सीजन्स का ज्ञान उनकी विरासत का हिस्सा है। कम्युनिटी सब कुछ है। गांव के लोग एक दूसरे को घर बनाने, फसल काटने और साथ मिलकर त्योहार मनाने में मदद करते हैं। बुजुर्गों को स्टोरी टेलर और गाइड के रूप में पूजा जाता है। उनका ज्ञान अगली पीढ़ी को आकार देता है। फैमिली बॉन्ड्स मजबूत होते हैं जो बिलोंगिंग और सिक्योरिटी देते हैं। जीवन का यह तरीका प्यार और सम्मान में रूटेड, दुर्लभ और प्रेरणादायक है। चाचा कोटा एकता और परंपरा पर फलता फूलता है। चाचा कोटा में जीवन त्योहारों और लोक कला से भरा हुआ है, जो रोजमर्रा की जिंदगी में रंग और खुशी लाते हैं। सेलिब्रेशंस खेती के सीजन्स को चिह्नित करते हैं। बुआई, मॉनसून और कटाई कम्युनिटी को संगीत और नृत्य में एकजुट करते हुए। गवरी उत्सव भील जनजाति का एक ड्रामेटिक लोक बैले टापू को कहानियों, पोशाकों और एनर्जी से भर देता है। महिलाएं अपने घरों को मांडना पेंटिंग से सजाती हैं, जटिल पैटर्न जिन्हें अच्छी किस्मत लाने वाला माना जाता है। ये जीवित कला रूप माँ से बेटी तक पास होते हैं, रोजमर्रा की जिंदगी के ताने बाने में बुने हुए। शामें संगीत से जीवंत हो उठती हैं। ढोलक, बांसुरी और खुले आसमान के नीचे स्पॉन्टेनियस डांस। गाने प्यार, नेचर और रोजमर्रा की खुशियों के बारे में बताते हैं, टापू की भावना को दर्शाते हुए। कला और उत्सव चाचा कोटा की धड़कन है। यहाँ परंपरा और रचनात्मकता साथ साथ पनपते हैं। टापू एकजुटता और खुशी की रिद्म से धड़कता है। चाचा कोटा इतिहास और किंवदंतियों से भरा हुआ है। इसके बुजुर्ग माही डैम के जमीन को बदलने से पहले की कहानियों के रखवाले हैं। टापू की पहाड़ियां कभी ऊंचे स्थान थीं, अब पानी से घिरी हुई है। लचीलेपन और अनुकूलन का प्रमाण। गांव के लोग इस नई दुनिया में फलना फूलना सीख गए हैं। जमीन के साथ उनका बंधन अटूट है। नेचर हमेशा मौजूद है। किंगफिशर गोता लगाते हैं, बगुले पहरा देते हैं और मोर सुबह की घोषणा करते हैं। इकोसिस्टम नाजुक और सामंजस्यपूर्ण है, जो लोगों और वन्य जीवों दोनों को बनाए रखता है। यहाँ सुंदरता छोटी डिटेल्स में पाई जाती है। सूरज की रोशनी का खेल, मकड़ी के जाले का पैटर्न, किनारे पर पानी की रिदम। चाचा कोटा आपको नोटिस करना, अप्रिशिएट करना, नेचुरल वर्ल्ड से फिर से जुड़ना सिखाता है। यह एक ऐसी जगह है जहाँ अतीत फुसफुसाता है और नेचर का गीत बना रहता है। टापू आपको धीमा होने और वंडर को फिर से खोजने के लिए इनवाइट करता है। चाचा कोटा में इतिहास और नेचर इंसेपरेबल हैं। जैसे ही सूरज चाचा कोटा पर ढला, आसमान और पानी रंगों के एक कैनवास में मिल गए। मैंने उस पर विचार किया जो मुझे मिला था, एक कम्युनिटी जो परंपरा, कला और ह्यूमन कनेक्शन में समृद्ध है। यहाँ खुशी को पल्लों में मापा जाता है, पोजेशंस में नहीं। लोगों की वार्मथ और लचीलेपन ने मुझ पर गहरी छाप छोड़ी। चाचा कोटा आशा की एक किरण के रूप में खड़ा है, यह दिखाते हुए कि नेचर के साथ हार्मनी और मजबूत कम्युनिटी बनी रह सकती है। ये टापू सिर्फ एक डेस्टिनेशन नहीं है, ये सिंप्लिसिटी और मीनिंगफुली जीने का एक सबक है। यात्रा ने मुझे बदल दिया, मुझे याद दिलाया कि सच में क्या मायने रखता है। चाचा कोटा की कहानी आशा, लचीलेपन और मानवीय भावना की एंड्यूरिंग पावर की है। यह नेचर और उसके लोगों द्वारा लिखी गई एक कविता है। चाचा कोटा में मेरा समय समाप्त होता है, लेकिन यात्रा जारी है। यात्रा सिर्फ जगहों के बारे में नहीं है, ये देखने और महसूस करने के नए तरीकों के बारे में है। हर छिपे हुए गांव की अपनी कहानी है, जो आपके द्वारा खोजे जाने का इंतजार कर रही है। मुझे उम्मीद है कि चाचा कोटा की यह झलक आपको अज्ञात को एक्सप्लोर करने के लिए उत्सुक करेगी। ऐसी अनगिनत जगहें हैं, सुंदरता और वार्मथ से भरी हुई, बस खोजे जाने का इंतजार कर रही हैं। चलिए साथ मिलकर एक्सप्लोर करते रहें। आपका सपोर्ट और जिज्ञासा इस यात्रा को ईंधन देते हैं। हमारे यात्रियों और सपने देखने वालों के कम्युनिटी में शामिल हों। आपकी उपस्थिति सब कुछ मायने रखती है। सब्सक्राइब करें, शेयर करें और चलिए साथ मिलकर जीवन की टैपेस्ट्री का जश्न मनाएं।
इस रास्ते पर मेरे साथ चलने के लिए धन्यवाद। चलिए देखते हैं कि अगला रास्ता कहाँ ले जाता है। राजस्थान को अक्सर बस रेगिस्तान और बड़े बड़े किलों वाला समझा जाता है, पर इसका एक और पहलू भी है, हरा भरा, पानी से भरा हुआ। फेमस शहरों से परे दक्षिणी राजस्थान है, जहां अरावली पहाड़ियां उन नदियों को अपनी गोद में लेती है और कुदरती नज़ारे बनाती है। बांसवाड़ा में, जिसे 100 टापुओं का शहर कहते हैं, माही डैम के बैकवाटर ने ज़मीन को टापुओं के पैचवर्क में बदल दिया है। यहाँ हरियाली ही हरियाली है और हवा में गीली मिट्टी की मीठी खुशबू घुली हुई है। मेरी यात्रा मुझे एक ऐसी जगह ले जाती है जिसके बारे में लोकल लोग फुसफुसाते हैं, एक सीक्रेट टापू वाला गांव, चाचा कोटा। यह गांव दुनिया से छिपा हुआ नेचर के साथ हार्मनी और सिंपल खुशियों की कहानी सुनाता है। ये सिर्फ एक डेस्टिनेशन के बारे में नहीं है, बल्कि रास्ते में होने वाली डिस्कवरीज के बारे में भी है। चाचा कोटा एक फूले हुए सपने जैसा लगता है, मॉडर्न जिंदगी की भाग दौड़ से बिल्कुल अलग दुनिया। आज मैं आपको इनवाइट करता हूं कि आप मेरे साथ इस छिपे हुए पैराडाइज को अनकवर करें। चलिए अपनी यात्रा राजस्थान के दिल में शुरू करते हैं। चाचा कोटा पहुंचना एक एडवेंचर है। बांसवाड़ा की मेन सड़कों को पीछे छोड़कर आप हरे भरे खेतों और शांत हवेलियों से गुजरते हैं। हवा ठंडी होती जाती है, दुनिया शांत होती जाती है, जब तक कि अचानक नीले पानी का एक विशाल एक्सपेंस दिखाई देता है, माही डैम के बैक वाटर। पानी से छोटे छोटे हरे टापू ऊपर उठते हैं, एक सांस रोक देने वाला अनएक्सपेक्टेड लैंडस्केप बनाते हुए। गांव तक पहुंचने के लिए आप एक संकरे कॉजवे को पार करते हैं, जो ऐसा लगता है जैसे आप शीशे पर ग्लाइड कर रहे हों। दोनों तरफ मछुआरे नावों में तैरते हैं और आसमान शांत पानी में पूरी तरह से रिफ्लेक्ट होता है। यह ब्रिज सिर्फ एक रास्ता नहीं है, ये दूसरी दुनिया का एक गेटवे है। चाचा कोटा ऊंची नीची पहाड़ियों के बीच बसा है, चारों तरफ शिमरिंग पानी से घिरा हुआ। घर सिंपल हैं, लैंडस्केप में खुल मिल जाते हैं और सिर्फ पानी के लहरों और दूर से आती हंसी की आवाजें सुनाई देती हैं। यहाँ कोई भीड़ नहीं है, कोई भाग दौड़ नहीं, बस शांति है। यहाँ राजस्थान एक शांत जलीय सुंदरता दिखाता है जो शायद ही कभी देखी जाती है। चाचा कोटा सचमुच एक छिपा हुआ पैराडाइज है। शांति के इस टापू में आपका स्वागत है। चाचा कोटा में कदम रखते ही मुझे एक गहरी शांति महसूस हुई। खामोशी में कीड़ों की भिनभिनाहट और पक्षियों की दूर से आती आवाजें जिंदा थीं। मिट्टी और पत्थरों के घरों के बीच रास्ते घुमावदार थे। हर घर में एक छोटा आंगन जहां रोजमर्रा की जिंदगी चलती थी। मक्के के हरे भरे खेत नीले पानी से सटे थे, एक खूबसूरत मोज़ेक बनाते हुए। गांव के लोग अपने काम में लगे थे, महिलाएं मसाले पीस रही थीं, बच्चे खेल रहे थे, बड़े कहानियां सुना रहे थे। दरवाजे खुले थे, मुस्कुराहटें आसान थीं और कम्युनिटी हर जगह थी। शहर की जिंदगी का स्ट्रेस पिघल गया जैसे जैसे मैं गांव में और अंदर गया। चाचा कोटा सिर्फ एक जगह नहीं है, ये सिंप्लिसिटी और शांति के घर लौटने का एक एहसास है। यहाँ जिंदगी की ज़रूरी चीज़ें, ताज़ी हवा, गर्म मुस्कुराहटें और नेचुरल ब्यूटी आपको याद दिलाती हैं कि सच में क्या ज़रूरी है। ये टापू आपको धीमा होने और बस होने के लिए एक जेंटल रिमाइंडर है। चाचा कोटा का दिल उसके लोग हैं, ट्राइबल कम्युनिटीज जो नेचर के साथ हार्मनी में रहती हैं। मैं एक बूढ़े मछुआरे से मिला, उसके हाथ सालों से जाल ठीक करने में माहिर थे, जिसने नदी और उससे मिलने वाली जिंदगी के लिए आभार व्यक्त किया। महिलाएं मजबूत और ग्रेसफुल, हंसी और लचीलेपन से घरों और खेतों को संभालती है। उनकी रंगीन पोशाकें गांव को चमकाती हैं।